Hello बच्चों, how are you? Welcome to my channel. Today we will explain bonding in coordination compounds. Okay, bonding in coordination compounds according to Warner's theory and valence bond theory, crystal field theory or CFT and ligand field or molecular orbital theory. Discussing about these theories one by one. And now Warner's theory of coordination compounds. In complex compound, metal atom exhibit two types of valencies, primary valency and secondary valency. Primary valency are satisfied only anions only, and secondary valency are satisfied by ligands. Primary valency depend upon oxidation number of central metal atom or ion, while secondary valency represent coordination number of central metal atoms. And third point is primary valency are ionizable and are non-directional. Okay, non-directional. Primary valency are ionizable and are non-directional, while secondary valency are non-ionizable and directional. Okay, primary valency are ionizable or non-directional, and secondary valency non-ionizable and directional. And the geometry of the complex depend by secondary valency. In valence bond theory in coordination compounds, according to this theory, the metal atom or ion under the influence of ligands form inner orbitals and outer orbitals complex. These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pair for bonding. Okay, अब हम इसके बाद आपको वैलेंस बॉन्ड में आउटर इसके एग्जाम्पल बताएंगे. इनर ऑर्बिटल्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. Bond theory, 6 ligand unidentate octahedral complexes. Generally, central atoms belong 3D series and ligands can be monodentate, but coordination number should be 6. And shape of complexes will be octahedral and form two types of complexes: inner orbital complexes and outer orbital complexes. In inner orbital complexes participate n-1 d orbitals and hybridization is d2 sp3. In outer orbital complexes participation of nd orbital in bonding and hybridization is sp3 d2. एग्जाम्पल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था आपको n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? CuNH3 6 and 3 plus, निकिल CN6 and 2 minus.
इसके बाद आपको हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे किस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है n-1 d ऑर्बिटल एंड टू फॉर्म d2sp3 एंड फॉर्म d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने इसमें आउटर ऑर्बिटल में बताया था आपको, इसमें होगा जो पार्टिसिपेट होता है ऑर्बिटल वो nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इन बॉन्डिंग में, और हाइब्रिडाइजेशन बनता है इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। इसके बाद आपको हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे किस तरह से बॉन्डिंग होती है, इसमें इनर बॉन्डिंग आउटर बॉन्डिंग कैसे होती है और इनर बॉन्डिंग किस तरह से होती है, वो स्ट्रक्चर आपको इसके आगे बताएंगे। और आपको ये याद रखना है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली हैलाइड्स होंगे, उसमें F माइनस Cl माइनस एंड SCl माइनस एक्सेट्रा। इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स लिखा है तो आप उसको बता सकते हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए d2 हमने बाद में लिखा है, यहाँ पे d2 पहले लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि इनर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, और यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल जो होगा d पार्टिसिपेट कर रहा है इन बॉन्डिंग फॉर्म में। एंड नाउ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, तो हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था CONH3 3+, तो इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, पहले हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट आयन, यहाँ पे हम बनाएंगे (3d) 4s and 4p. Okay. In this complex, cobalt have 3d 6 orbital. Okay. 3d 6 have 3d 6. Number of electron in outermost shell only 6 electron. और आपको ये भी पता होगा कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d 7 4s 2. When 3 electron remove to form CO3 plus, okay, and 3d 6. तो इस तरह से हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 and 6. Okay. And when hybridization d2sp3 hybridization, it form this. Okay. 3d d2sp3 hybridization. Even in this complex, hybridization is d2sp3 and participation of orbital n-1 d. तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट d2sp3 and when the ammonia molecules attached with cobalt, it's formed 1 2 3 4 2 3 4 5 6.
So 6 pairs of electron from ammonia molecules. 6 pairs of electron. 6 है 1 2 3 4 5 6. All electrons are paired, therefore complex will be dimagnetic in nature. तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ये डायमैग्नेटिक नेचर में होगा क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. और इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ओके, so all electron in paired in inner orbital complex form D2sp3 hybridization. And orbital and outer orbital complex हमने आपको बताया था इसमें जो है जो पार्टिसिपेट होता है ऑर्बिटल वो nd ऑर्बिटल होता है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2. ओके, एंड ऑल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. और इसको हम कह सकते हैं कि ये इसको कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल ऑफ CuF6 3- is a outer orbital complex. एग्जाम्पल ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से आप जैसे मैंने इनर का बताया था इसी तरह से आउटर का होगा. यहाँ पे इतना फर्क है कि ये आउटर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा. ओके, तो 3d ये ऑर्बिटल है कोबाल्ट का 3d6. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर इन ऑर्बिटल 2 पहले 1 1 होगा फिर जो लास्ट वाला होगा वो इसमें आएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं डिफरेंट स्पिन में. उसके बाद 4s 4p एंड 4d. And now when hybridization it form sp3d2 hybridization and octahedral complex form. This is octahedral complex. sp3d2 hybridization and octahedral complex form. This is octahedral complex. ओके, ये 3d5 sorry 4d orbital and complex. In this complex fluoride ion 6 fluoride ions hybridize and complex will be so outer orbital complex and all electrons are in this outer orbital complex. Electrons are unpaired. All electrons are unpaired and free spin formed. So this type of complex paramagnetic in nature. Paramagnetic नेचर में होगा. ओके, और हमने आपको इनर ऑर्बिटल बताया था वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे. और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ये ऑक्टाहेड्रल होगा. यहाँ पे हम बता सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा. जो लिगेंड्स अटैच हैं सेंटर मेटल एटम से वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होंगे. ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं हम ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. यहाँ पे ना ये 4s पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से ले सकते हैं इतना. ठीक है, तो हो जाएगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2. एंड नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द 5d orbitals are split into lower and higher energy level due to
approach of ligands is known as crystal field theory. The 5d orbitals in a gaseous metal atoms or ion have same energy. And now crystal field theory in octahedral coordination sphere and d orbital is splitting in octahedral crystal field. In octahedral complex, 6 ligands are attached. And when they split in the d orbitals to form average energy and then two form of energy Eg level and T2G level. In T2G level, d orbital is split into dxy, dxz and dyz. And Eg level, d orbital is split into dx square minus y square and dz square. And this is the energy gap 3.5 and energy gap between T2G level and average level 2/5 and hold the energy between Eg and Eg is form crystal field splitting energy is equal to 10 dq. And now crystal field theory in tetrahedral coordination compounds. In tetrahedral complex X, four types of ligand attached with center metal atom or ion. In center metal atom contain d orbital and this d orbital split into lower energy or higher energy, and this is form average energy and split into two form T2G and EG. उसमें हमने बताया था आपको ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर EG हो जाता है और नीचे T2G. इसका टेट्राहेड्रल में ये याद रखना है कि अपोजिट होता है, तो T2G ऊपर हो जाएगा और EG क्या होगा नीचे लोअर एनर्जी लेवल. तो EG में हम कह सकते हैं यहाँ पे EG में जो स्प्लिट होगा वो d ऑर्बिटल का dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और T2G जो स्प्लिट होगा d ऑर्बिटल उसको कह सकते हैं dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स. एनर्जी गैप between an average and T2G level 2/5 and 3/5 between EG and average level, and total energy जो tetrahedral complex की होगी वो 4/9 split of octahedral complex. This is a delta naught represent the crystal field splitting energy. और हाँ, आपको एक चीज़ और याद रखनी कि इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में जैसे कि हमने आपको अभी इससे पहले बताया था कि स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं लोअर और हाई एनर्जी लेवल में इन T2G और EG फॉर्म में. तो एनर्जी अगर ये एनर्जी सेपरेशन ऑक्टाहेड्रल में हम डिनोट किससे करते हैं डेल्टा नॉट, ठीक है. और जो एनर्जी ऑफ द टू EG ऑर्बिटल यानी कि हायर energy orbital will be increased by 3/5 delta naught. Okay, and lower T2G, lower energy orbital will decrease by 2/5. इससे क्या होगा कि टोटल एनर्जी से 2/5 डिक्रीज हो जाएगा किसमें T2G लेवल में, और EG लेवल जो होगी वो हायर होगी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब एक चीज़ और याद रखना है कि अगर यहाँ पर डेल्टा जीरो की वैल्यू इज लेसर देन पेयर एनर्जी, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो इंटर होगा वन ऑफ द EG ऑर्बिटल्स एंड गिविंग द कॉन्फिगरेशन T2G EG. जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है T2G 3 एंड EG 1 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन या 3 ऑफ 1. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 और ये EG का जो है यहाँ पे 1 एक इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और जो ऊपर की हायर लेवल है वो EG की. तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया EG में.
तो इसका मतलब है जो वीक फील्ड लिगेंड होगा एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑल आर जो होंगे ये स्पिन फ्री होंगे, यानी कि हाई स्पिन है, ऑल आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको हम कह सकते हैं ये वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स बनाएगा इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, अगर वीक लिगेंड है तो। ठीक है, अगर अब दूसरी तरफ अगर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा जीरो की वैल्यू हायर है देन पेयर एनर्जी से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T2G4Eg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म नो स्पिन एंड नो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, या लो स्पिन कह सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा लो स्पिन, वहां पे क्या था हाई स्पिन। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, अगर यहाँ पे डेल्टा जीरो यानी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो सिंगल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कहते हैं पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, वो T2G ऑर्बिटल्स में ही रहेगा। ठीक है, एंड गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2G4Eg and now to form strong field ligand and low spin form low spin complexes in octahedral crystal field theory। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप कर दीजिए इसको, ये हायर लेवल हो गए Eg और ये क्या है T2G। ओके, अब इलेक्ट्रॉन दिखाना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये क्या होगा यहाँ पे पेयर हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी हायर होगी देन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन से। तो हम इसको ये कह सकते हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा किसी कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्टाहेड्रल तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इनको कह सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या लो स्पिन का है, इस तरह से बता सकते हैं। तो और टेट्राहेड्रल में आपको क्या याद रखना है, द एनर्जी ऑफ द 2Eg यहाँ पे हो जाएगा T2G लेवल हायर एंड Eg लोअर, यहाँ पे 2/5 यहाँ पे 3/5। अब आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा जो आपको समझ के करना है, इसमें क्या होगा टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने आपको डायग्राम में जैसे दिखाया था T2G लेवल इज हायर देन Eg लेवल। ओके, इसमें इन्वर्ट होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का। तो एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी इज सब्सक्रिप्शन ऑफ टेट्राहेड्रल compounds and the energy of the two T2G orbital higher energy level and will be increased by 2/5 delta T and lower Eg lower energy orbital will be decreased by 3/5 delta T and now delta T is denoted by delta T n is equal to 4/9 and now delta T is equal to 4/9 delta naught. 0 is subscription for octahedral complex and T for tetrahedral
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच होंगे। ओके, फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा इसमें जो ओके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होंगे जो जिसमें 4 लिगेंड अटैच होंगे और ये लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लो स्पिन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें T2G लेवल जो होगी वो EG लेवल से हायर होगी, और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। दिस इज अ टेट्राहेड्रल splitting tetrahedral is equal to 4/9 delta knot complex, and splitting this is a splitting in tetrahedral is equal to 4/9 splitting in octahedral denoted by delta knot। okay, put by F put ये आपको याद रखना है, and RS molecule। okay, according to this theory, all the atomic orbitals of atoms participating in molecule formation get mixed to give rise an equivalent number of new orbitals called molecular orbitals. The electrons are now under the influence of all the nuclei। यहाँ पे मेटल है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड का एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगा, कंबाइन करके यहाँ पे मेटल टू लिगेंड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि लिगेंड फील्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसीलिए इसको कहा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू मेटल सेंट्रल एटम और आयन, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम कह सकते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी आपके अभी कोर्स में नहीं है, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, CO and these orbitals ओके। उसके बाद है यहाँ पे देखिए इससे बॉन्डिंग होगी, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, इससे बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड, ओके, एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होगी और पाई एंटी बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे आप इसको बता सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड जो होगा, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल, ओके।
and in this process both sulfur and in metal bonding, in case of bonding in metal carbonyl, the metal carbon bond in metal carbonyl possible both S and P characters. The MC sigma bond, okay, MC sigma bond is formed. MC sigma bond is formed by the donation of lone pair electron, donation of lone pairs of electron on the carbonyl, on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. ओके, एक बार फिर से बता देते हैं. द बॉन्ड मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon, okay, into a vacant. This is a vacant orbital of the metal. क्लियर. उसके बाद देखिए दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, MC पाई बॉन्ड. ओके, अब इसमें क्या होगा, MP पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे हमने बताया एंटी बॉन्डिंग और पाई, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड. तो अब जो होगा द MC मेटल कार्बन बॉन्ड जो होगा, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड is formed by the donation of pair electrons from a filled d orbital of metal into the orbital of carbon monoxide. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे दोनों तरह की बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ये भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और ये जो होगा सिग्मा बॉन्ड. मेटल कार्बोनेट कंपाउंड के कुछ एग्जांपल है NiCO4. हाँ, ये कुछ एग्जांपल है मेटल कार्बोनेट ग्रुप के. तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, एंड ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का दिखा सकते हैं यहाँ CO, और यहाँ पे एक लिया CO, क्या था ये CrCO6. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल. octahedral structure and metal carbonyl bonding. Octahedral structure in this is the octahedral structure of CrCO6. Okay, clear? Is it clear?